पापा 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 मेरी स्कूल की फीस भरनी है 2000 रुपया। 2000 रुपए? हाँ पापा। मम्मी से ले लेना। थैंक यू पापा। पापा मेरी 100 ही रुपए है। तुम एक बार बोला ना नहीं तो नहीं। वैसे भी लड़कियां पराया धन होती है। देखा बच्चों, ये था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नंबर 1। अभी हम देखेंगे 2। अंकल आप आपकी बेटी को ना कभी स्कूल मत भेजना। पढ़ेगी लिखेगी बड़ी अफसर बन जाएगी, शायद वो चांद पर भी जाएगी, पर हाँ आपको उसकी शर्म आएगी ना। बेटी को पढ़ाकर इस देश पर कर्म करो। By just being here today, Mr. Rivero, please felicitate Amir Ji for being here amongst us. Dr. Ratna Ji, please stage pe aiye, one of the founder members of PCGT, and I request you to please felicitate our very own Commissioner of Police, Mr. Rakesh Maria, who has been making so many changes for us in Mumbai. Verma ji, what impeccable style. You look wonderful today, and thank you so much, Shankar ji, for doing this for us. Thank you so much. May I please request our guests to take a seat. First, I call upon stage somebody who has lived his life with a mission and vision. Very few of us feel for things but can do so little. Mr. Rivero, a graduate in Commerce and Law from Mumbai University, joined the Indian Police Service in 1953, post which he went on to be the Commissioner of Police for Mumbai between 82 and 85. Surprisingly, he has been called upon at various points to assist the government how to make that change. The book on RTI, let's hear it. For this book, which is Bombay Coding Company has released for us, and the Yes, and written by Narayan sir, of course. So let's put our hands together for this wonderful moment we've been waiting for today. The first prize, Amir sir, we'd like you to do the honors for this, goes to Dr. Ambedkar College. Woo! Congratulations, Dr. Ambedkar College. Well deserved. Rakesh Maria sir, please do honor the Bombay Coding Company right now for preparing the app for वो RTI के बारे में क्या सोचते हैं, और of course आज हमारे साथ ये शाम बिताने के लिए, जिसके लिए he was ready to fly down just for a day for you, for PCGT. I'd like you to put your hands together for him for being here this evening. Before I call upon Amir, I think I've gotten a little too excited. Maria sir has been doing consistently and has done in the past a lot for the changes in Mumbai. Our Commissioner of Police today joining us and sharing a few words as to how we can be concerned citizens and make that change. Rakesh Maria ji, thank you very much. I join my hands in all honesty and thank you especially as a lady member of Mumbai for taking such aggressive steps and sending out a message in Mumbai. Amir, anything that you say today is going to be an inspiration for us. It's the beginning of the year and we have been so inspired by PK. Thank you for that gift to the country and the nation. I truly am a huge fan and the heart and the spirit you bring to this country. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I'm really happy to be here. In fact, I'm so glad to be here. हिंदी में बोलूँ, अंग्रेजी में बोलूँ, क्या प्रेफर करेंगे आप लोग? मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ आया हूँ और रिवेरो साहब और उनकी जो पूरी टीम है, पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट की जो पूरी टीम है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है।
ये जो काम है ये इसमें वक्त लगता है, इसमें पेशेंस चाहिए, लेकिन ये एक ऑन गोइंग काम है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वक्त देते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि रिबेरो साहब जिनकी उम्र हमसे कहीं ज्यादा है, वो इस उम्र में भी इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे वाकई आई फील सो प्राउड टू बी समवन हु इज शेयरिंग द स्टेज विद हिम एंड पीपल लाइक हिम, यू नो। आई होप कि जब मैं रिबेरो साहब की उम्र का रहूंगा तो मुझे में इतनी शक्ति होगी, मुझ में इतना ड्राइव होगा कि मैं नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता रहूं। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग एंड आई थिंक राउंड ऑफ अप्लॉज टू नॉट ओनली मिस्टर रिबेरो बट हिज एंटायर टीम। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ आया हूँ और आप सबकी बातें मैं सुनना चाहूंगा। आपके जो सवाल है मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका जवाब दूं। ये करप्शन जो एक मुद्दा है, इतना डिफिकल्ट और पेचीदा मुद्दा है। हम लोग सत्यम जयते में हमारी टीम ने कई दफा इस पर डिस्कशन किया कि शुड वी टेक करप्शन एज अ टॉपिक। हो सकता है आगे जाके हम ये टॉपिक लें, लेकिन अब तक हम उसके ऊपर सही तरीके से हमको हैंडल नहीं मिला है। सो वी हैव गॉन अराउंड दैट टॉपिक इन डिफरेंट वेज। हमने व्हाट आर योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डेमोक्रेसी हमने किया था, जिसमें गांधी साहब भी आए थे। और आई थिंक जो एक फेबल है अकबर और बीरबल का, वो बड़ा अच्छी तरह इसको इलस्ट्रेट करता है। तो शाहजहां अकबर को बड़ा फख्र था कि मेरे जो सिटीजन्स हैं वो बड़े ईमानदार हैं। तो बीरबल ने बोला कि हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इस बात को कि आपको बड़ा गर्व है, बड़ा फख्र है आपको कि आपकी जितने सिटीजन्स हैं वो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अकबर बादशाह चाहते हैं कि हर एक सिटीजन जो है, एक बड़ा सा टैंक है, उसमें आप एक जग पानी उंडेल दें आके। हम पूरा दिन पानी नहीं, दूध, हम पूरा दिन दूध इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और बादशाह ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक जग दूध उस टैंक में आके डाल दें। तो बाकायदा दिन भर लोग आए, एक एक जग उन्होंने डाला टैंक के अंदर। और अगले दिन जब टैंक खोला गया तो देखा कि उसमें सिर्फ पानी था। हर आदमी ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डालूंगा, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। तो करप्शन इज एन इश्यू विच वी हैव टू रियलाइज कि इट इज कनेक्टेड टू मी। हर इंसान को इसको समझना है कि करप्शन बाहर नहीं है, करप्शन मेरे अंदर है। दूसरा आदमी दूध डाल रहा है, दूसरा आदमी पानी डाल रहा है, उसको न सोच के मैं अपना काम करूं, यह है सोल्यूशन करप्शन का। अक्सर हम सोचते हैं कि करप्शन की लड़ाई मतलब उन करप्ट पॉलिटिशियंस को हमको अटैक करना है या उन करप्ट पब्लिक ऑफिसर्स को हमको अटैक करना है। वो हम हमेशा बाहर देखते हैं, हम कहीं और देखते हैं करप्शन को टैकल करने के लिए, बट वो गलत तरीका है। जो पॉलिटिशियन है उनको हमने ही चुना है, जो पॉलिटिशियन है वो भी इसी सोसाइटी का है, वो भी एक इंसान है, इसी गोले का है, पीके की तरह दूसरे गोले से नहीं आया। तो वो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है। और जिस दिन हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो मजबूत होगा, फिर चाहे आप उस पोजीशन ऑफ पावर में रहें, चाहे आप लीडर बने, चाहे आप पब्लिक सर्वेंट बने, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे, उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। सो वी हैव टू लुक इनवर्ड फॉर करप्शन, द स्ट्रगल फॉर करप्शन। आई फील वी ऑलवेज हैव टू लुक इनवर्ड, एंड आई एम हैप्पी टू स्टार्ट द डिस्कशन एंड टेक एनी क्वेश्चंस you all may have. Your movies depict interesting characters for enthralling the audience. At this age, playing characters like Rancho, DJ, PK, I would like to ask you, how do you make it? Your question is कि मैं young characters कैसे करता हूँ? अच्छा, आप लोगों ने देखा पीके? उसमें मैं यंग लग रहा हूं। देखिए, एक्टर का जो काम होता है वो यही होता है कि हम अलग अलग किरदार निभाते हैं, और वो किरदार मैं नहीं हूं। जो भी मैं किरदार निभा रहा हूं उसमें से कुछ चीजें सिमिलर होंगी मुझसे, बट एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो ऑफन वो मैं उस उम्र का नहीं होता हूं। जैसे कि जो किरदार है मेरा 3 इडियट्स में, उसमें तो हद ही कर दी हम लोगों ने।
क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त थी 44 और राजू हिरानी चाह रहे थे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एंट्री ले रहा हूँ, रैगिंग वैगिंग हो रही है। तो मैंने कहा राजू ये कैसे होगा, लोग हम पे हंसेंगे, तो आप मुझे मत लो, आप किसी यंग लड़के को लो जो नया एक्टर है। तो ही इंसिस्टेड दैट ही वांटेड मी। तो फिर मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हाउ डू आई लुक द एज, हाउ डू आई लुक द पार्ट, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो। तो एक पार्ट होता है फिजिकली, कि फिजिकली मुझे यंग लगना है। तो आप अपनी एल्बम देखेंगे, जितने यहाँ पे मिडिल एज लोग हैं या एल्डरली लोग हैं, आप अपना एल्बम देखेंगे पुराना जिसमें आप 18 साल के थे, तो आपको सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करेगी वो ये है कि आप दुबले थे। सबको लगता है यार मैं कितना दुबला था यार, कमाल है यार, इतना दुबला था मैं। तो सबसे पहले फॉर मी एज अ क्यू एज एन एक्टर, अगर मुझे यंग लगना है सबसे पहले मुझे दुबला होना, आई हैव टू बी वेरी थिन। सो दैट्स द फिजिकल एस्पेक्ट। देन इज द मेंटल एस्पेक्ट। यंगस्टर्स का जो माइंड होता है वो अलग रफ्तार में चलता है। एज यू गेट ओल्डर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप थोड़े और स्टेडी हो जाते हैं इन योर रिएक्शंस। You become a little more calm, you become a little more steady. But when you're a youngster, your brain moves a lot faster, you're more impulsive in your reactions. So, as a 44-year-old, I have to think like an 18-year-old. And that is a very big challenge for me. So, I observed a lot of people. I observed my nephew. मेरा nephew जो था, वो 13-14 साल का था, वो कभी still बैठता नहीं था, वो move करते रहेगा। He's always moving, कुछ भी खोल रहा है वो, आपसे बातचीत भी कर रहा है, उसका कुछ हिल रहा है वो। तो I realized that. So I took that from him. So if you look at Rancho, you will find that he's never static. He's always moving or something. वो कुछ ना कुछ जो हिल रहा है, you know. So these are things that you pick up. So basically as an actor, it is my job to play different age groups, different characters, and I have to mold myself into that each time. So I try and do that to the best of my abilities. अभी मैं रोल कर रहा हूँ, दंगल एक फिल्म आ रही है, उसमें मैं रोल कर रहा हूँ एक्स रेसलर का, जिसमें मेरी उम्र है 55 साल। अब देखिए मैं 18 साल का मुझे प्रेफर करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी मैं अपने आप को मोल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। I would like to emphasize upon the elevating controversies regarding films nowadays. So I would like to ask you that is it the case that hit films lead to controversies, or else controversial films lead to become hit? Okay, that's a good question. इसके मैं दो आंसर दूंगा। एक तो ये कि फिल्म जब लोगों को पसंद आती है तब वो हिट होती है। जब हम हिट वो कहते हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मतलब है कि लोगों को पसंद आई, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखी, उनको पसंद आई। एक फिल्म का कामयाब होना सिर्फ एक चीज पर निर्भर होता है, और वो है कि आपने फिल्म कितनी अच्छी बनाई। जब मैं भी एज एन ऑडियंस कोई फिल्म देखता हूं, तो जब मुझे पसंद आती है तो मेरा मन करता है कि मैं दोबारा देखूं। जिसको मैं मिलता हूं, मैं कहता हूं कि यार ये बड़ी अच्छी फिल्म है, जरूर देखना। वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छी लगी। उसमें आप मार्केटिंग, अगर आपने बुरी फिल्म बनाई है, आप उसमें कमाल की मार्केटिंग कर लीजिए, जो करना है आप जोर लगा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी एक थियोरी है फिल्मों को लेकर कि नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट मेक अ बैड फिल्म वर्क, एंड नो मैटर व्हाट यू डू, यू कैन नॉट किल अ गुड फिल्म। इट वर्क्स बोथ वेज। एक अच्छी फिल्म को आप रोक नहीं सकते, पब्लिक जो है वो जाएगी, जब आपने अच्छी फिल्म बनाई वो जाएगी, और एक बुरी फिल्म को आप जितना जोर चाहे लगाते हैं वो वर्क नहीं होगा। ये तो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। उससे मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूं, कंट्रोवर्सीज को लेकर। कंट्रोवर्सीज का अभी ऐसा हो गया है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत सॉफ्ट टारगेट है। दो तीन चीजें हैं इसके साथ। जहां आपने फिल्म के खिलाफ कोई चीज आवाज उठाई तो आपको फौरन पब्लिसिटी मिलती है। फलाना ढमका ने पीके के खिलाफ केस कर दिया, वो आ गया फ्रंट पेज पे, हर जगह न्यूज पे आ जाता है। पीके मेरी फिल्म थी, मेरे राइट्स राजू ने चोरी किए, ठाक फ्रंट पेज पे आ गया वो। तो हर जगह न्यूज पे आ रहा है कि बेचारा राजू हिरानी ने अब कहीं से पीके की कहानी चोरी की है। तो ये बड़ा इजी हो जाता है लोगों को इससे पब्लिसिटी मिलना। तो झूठ मूठ के केसेस इतने हो चुके हैं, जब वो केस आएगा हियरिंग के लिए, जब वो प्रूव होगा कि नहीं वो पीके जो है राजू हिरानी की ही कहानी थी,
तब तक हम इस कंट्रोवर्सी को भूल गए होंगे, उसको 10 साल हो चुके होंगे, लेकिन उस आदमी को इस वक्त अभी का अभी उसको उस चीज का फायदा हो गया। तो दूसरा ये कि लोग बहुत सारे हैं जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि आपकी फिल्म अभी आई है तो वो ब्लैकमेल करेंगे, मैं ये कंप्लेंट करता हूं आपकी फिल्म के खिलाफ, फिल्म रोक दूंगा, तो फिर वो चाहते हैं कि आप उनको अलग से सेटल करें, उनको पैसे वैसे दें। तो फिल्म इज अ वेरी सॉफ्ट टारगेट, सो अनफॉर्चुनेटली वी गेट अटैक्ड एंड इट्स नॉट ओनली माई फिल्म और 1 फिल्म और 2 फिल्म्स। हर फिल्म को आप देख लीजिए, कोई ना कोई केस हो रहा है हर फिल्म के खिलाफ, हर फिल्म के खिलाफ कोई ना कोई केस हो रहा है, लोग उसको बंद कराना चाहते हैं, लोग उसके खिलाफ केस कराना चाहते हैं। तो आई फील इट्स हाई टाइम दैट यू नो the people at large should know this, that we are soft targets, we are constantly attacked. और चूंकि उससे न्यूज बनती है, even media channels I feel should show some responsibility कि भाई कोई एक आदमी है जो एलेज कर रहा है कि उसने राजू हिरानी की कहानी चुराई है या राजू हिरानी ने उसकी कहानी चुराई है, तो आप थोड़ा सोचिए राजू हिरानी के बारे में किस किस्म का आदमी है वो, कभी लाइफ में ऐसा करेगा? गांधीगिरी बचा बना चुका है। आप राजू से बात करेंगे तो लगता है कि यार इससे कोई नेक इंसान नहीं है। तो इससे पहले कि मैं इसको न्यूज बनाऊं, थोड़ा मैं टटोलूं कि इसमें कुछ भी सच्चाई है या नहीं, यू नो, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट आपको उसमें रखना चाहिए। सम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी शोन, एवरीथिंग जस्ट कैन नॉट बिकम न्यूज जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग टू हिट द हेडलाइंस। सो दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, आई फील दैट्स हैपनिंग। सो आई एम अगेंस्ट कंट्रोवर्सीज कंप्लीटली। So my question to you is that you have identified yourself with education to a very great extent, with organizations like Teach for India and various movies like 3 Idiots and Tare Zameen Par in a very sensitive manner. So how far do you think that they have delivered a very good message and have been successful in impacting the education policy in India? देखिए, मुझे लगता है दोनों जो फिल्में हमने की हैं एजुकेशन पर, तारे ज़मीं पर, एग्जैक्टली पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में कितना फर्क हुआ है, आई डोंट हैव अ बैरोमीटर टू मेजर दैट, मैं उसका अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन जो मेरा सेंस है कि तारे ज़मीं पर का बहुत गहरा असर हुआ है टीचिंग फ्रेटर्निटी पे, पेरेंट्स पे, बच्चों पे, इन जनरल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। आई थिंक जब फिल्म आई थी उस वक्त बहुत कम जानकारी थी लोगों में, एक्सेप्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, उनको छोड़ के जो बाकी के जो एजुकेटर्स हैं उनमें भी बहुत कम जानकारी थी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में और बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में प्राइमरी एजुकेशन लेवल पर। एंड आई थिंक इस फिल्म से बहुत सेंसिटाइजेशन हुआ है देश भर में, और मुझे जगह जगह जब मैं जाता हूँ मुझे टीचर्स मिलते हैं, मुझे पेरेंट्स मिलते हैं जो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने ऐसी फिल्म बनाई जिससे उनको, बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। तो मेरा ये सेंस है कि उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हुआ है। और उसी तरह 3 Idiots जो हायर एजुकेशन के ऊपर फिल्म थी, आई थिंक इट इज रियली इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री एंड इट हैज फ्रीड देयर माइंड टू थिंक डिफरेंटली, आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप वही करें जो आपका दिल चाहता है, आप अपने दिल को फॉलो करें। और ये एक गहरा मैसेज जो है मुझे लगता है यूथ तक बहुत ही बड़े पैमाने पर पहुंचा है। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे मौका मिला इन फिल्मों का एक हिस्सा बनने का। आई फील रियली हैप्पी अबाउट दैट। आई थिंक आमिर ने जो कहा ये बहुत हद तक सच है। और यहाँ पर एक, जैसे वो बात कर रहे थे, केतन है क्या, केतन मोहिते, जस्ट स्टैंड अप। ही इज़ ए इंजीनियर एंड MBA and has just graduated from Trinity School of College and is working for Furtado Music School. Right. So that's You were motivated by 3 Idiots. Wow. Sorry, and? Thanks for the movie. Yeah, thanks man. I'm so happy. I think we should all be I'm so happy. looking for. Yeah. I'm so I happy. just thought of it. Yeah. You know, I often feel that एक क्रिएटिव इंसान का सोसाइटी की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्थ देते हैं, पुलिस वाले जो हैं सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर देते हैं हमको। हर इंसान का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। एवरी वॉक ऑफ लाइफ कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर। सो आई ऑलवेज थिंक दैट कि क्रिएटिव लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए या क्या जिम्मेदारी है हमारी, चाहे आप पोएट हो, म्यूजिशियन हो, पेंटर हो, आप पेंटिंग बनाते हैं, एक्टर हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइटर, यू नो, सिर्फ आपका दिल बहलाना, आई थिंक यहां पर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब आप थिएटर में आते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपका दिल बहलाएं, तो यकीनन हमारी वो जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो समाज है उसमें एक जोश भरें, हम
सोसाइटी में ग्रेस लाएं, हम जो सोशल फैब्रिक है सोसाइटी का उसको मजबूत करें, हम सही वैल्यूज, सही मॉरल्स लोगों में इंस्टिल करें, खासतौर से बच्चों में। और हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में बुराई होती है। हम उस अच्छाई को टटोलें, उसको छुएं, ताकि वो ग्रो करें। हर इंसान में निराशा भी होती है अलग अलग वक्त पर, हम उस निराशा को दूर कर पाएं, हम आपको इंस्पायर करें अपनी कहानियों के जरिए, अपने किरदारों के जरिए। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव इंसान की जिम्मेदारी होती है, विच इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, वेयर यू कैन एक्चुअली चेंज एन एंटायर जनरेशन थ्रू what you're instilling in them at a very young age. That's what I feel. So which is why films like a very important part of my life, you know, Tare Zameen Par or Rang De Basanti or Three Idiots or my attempt to do Satyameva Jayate, it all comes from that. एक और सवाल है एजुकेशन से जुड़ा हुआ जी, मैं उन्हें बुलाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पैनलिस्ट को भी अगर कहीं इंटरवीन करना हो तो वो करें। हाँ। तो जरा ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगा। और तन्वी है क्या? Good evening, sir. Hi, Tanvi. My question to you is that in a right-based society, children will be ensured enrollment in schools. But however, as per various studies done by PIER and Pratham, it is shown that the standard of education is extremely poor. Students of standard 4 cannot even sign their own names. So how are we supposed to ensure qualitative change so that education turns our youth into responsible citizens? Well, I think ये एक मुद्दा है जो यकीनन हमारे सामने है कि हम, और मुझे इसमें मेरे जो थॉट्स हैं वो ये हैं कि जब तक हम अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, जब तक हम उनको सबसे नंबर 1 का औहदा नहीं देंगे, अव्वल औहदा सोसाइटी में, जब तक हम उनको नहीं देंगे तब तक ये चेंज नहीं आएगा। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन एवरी वे। आज के डेट में जितना यूथ है, जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं MBA बन जाऊं क्योंकि उसमें अच्छी कमाई है, मैं इंजीनियर बन जाऊं उसमें अच्छी कमाई है, मैं डॉक्टर बन जाऊं उसमें अच्छी कमाई है। अगर हम आगे चल के ऐसे चेंजेस लाएं जिससे यूथ को लगे कि मैं टीचर बन जाऊं उसमें सबसे ज्यादा कमाई है, तो योर ब्राइटेस्ट माइंड्स विल गो टुवर्ड्स एजुकेशन। राइट नाउ योर ब्राइटेस्ट माइंड्स आर गोइंग अवे फ्रॉम एजुकेशन। आज के डेट में कौन लोग एजुकेशनिस्ट बनते हैं? 2 किस्म के होते हैं। एक वो जिनका पैशन है एजुकेशन और चाहे कुछ हो जाए वो सिर्फ एजुकेशन में ही आएंगे, और दूसरे वो जिनको और कहीं जगह ओपनिंग नहीं मिली। तो दैट इज अ वेरी सैड सिचुएशन। द हाईएस्ट पेड पीपल शुड बी टीचर्स। देखिए, इंजीनियर अगर मैं बुरा निकला ना तो मैं थोड़ा बहुत डैमेज करूंगा सोसाइटी को। अगर मैं बुरा डॉक्टर निकला तो जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी और फिर जितने हैं वो भी भाग जाएंगे मुझसे, तो मेरा डैमेज भी लिमिटेड होगा। अगर मैं बुरा टीचर हूं तो मैं आने वाली कई पीढ़ियों को डिस्ट्रॉय करूंगा, वन आफ्टर द अदर। तो इसलिए टीचर्स जो हैं, दे आर शुड बी द फोरमोस्ट, एंड दैट इज व्हेन द चेंज विल कम। कि जब आप टीचिंग को, जब आप एजुकेशन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, जब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं अपने नॉर्मल लाइफ में, आप देखिए लोग जाते हैं मॉल्स में। आजकल लोगों की आमदनी भी, कई लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो मॉल्स में जाएंगे, हम एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, घड़ियां, पर्सेस वगैरह, ये वो। लेकिन जब हम बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं यार इतना क्यों मतलब इतना हम क्यों दें, स्कूल की फीस इतनी क्यों होनी चाहिए। आई एम सेइंग आई हैव टू थिंक द अदर वे। द मैक्सिमम आई वांट टू स्पेंड इज ऑन एजुकेशन। पर्स मैं बाद में देख लूंगा, जूता भी मैं बाद में खरीद लूंगा, मेरे को पहले एजुकेशन पे स्पेंड करना है। So the mindset has to change, I think, in all of us. What are we giving importance to? जब हम उस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बदलेगी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में टीचर्स होंगे जो फिर आने वाली पीढ़ी को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। That's what I feel. Thank you, sir. सही है, क्योंकि हर टाइम फिल्मों को ही पकड़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक बड़े पैमाने पे ज्यादातर
जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रही हैं जो हमको निभाना चाहिए। बहुत सारी फिल्मों में हम गलत चीज़ें दिखाते हैं, गलत मैसेजिंग देते हैं, कभी कभी वो डायरेक्ट गलत मैसेजिंग होती है, कभी कभी वो इनडायरेक्ट सबकॉन्शियस गलत मैसेजिंग होती है। तो इसका बड़ा गहरा बुरा असर होता है सोसाइटी पर, इससे कोई दो राय नहीं है। एंड आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट एंड आई ऑल्सो फील बैड कि ये ऐसा हो रहा है। होप दैट एज एन इंडस्ट्री वी कैन internally check ourselves and try not to do that. Having said that, मुझे ये कहना है कि देखिए, अगर हम महिलाओं की सेफ्टी की बात करें, स्पेसिफिकली उसकी बात करें, तो हमने बड़ा रिसर्च किया है हमारे शो में उसके ऊपर, और उसमें हमें ये सामने आया कि जो मेन कॉज है महिलाओं पे इतने अटैक्स हो रहे हैं, द मेन कॉज इज कि जो पोटेंशियल परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम है, जो ये जुर्म करने जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। और ये उसको विश्वास क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि जिसके खिलाफ मैं ये कर रहा हूं, ज्यादातर वो लड़की इस बात को छिपाएगी, बोलेगी नहीं, शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं ना बोले। उसके बाद वो अगर पेरेंट्स को बोल भी देगी तो पेरेंट्स बोलेंगे चुप रहो भाई, किसी को मत बोलना। अगर बाय सम फ्रीक चांस पेरेंट्स ने बोला नहीं, लेट्स डू अ पुलिस कंप्लेंट, तो पुलिस में जाएंगे तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन इस वक्त है, रियलिटी, अगर वहां पे भी वो उससे गुजर गए तो जब मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे वहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक से एविडेंस कभी कभी कलेक्ट नहीं होता है, ठीक से सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती सर्वाइवर को, और फिर कोर्ट रूम में तो हमको लगेंगे 15-20 साल। जब तो ये क्या है, इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है वो इतना इन फेवर ऑफ द perpetrator है, it's so against the balance of power, is so against the rape survivor that unless this balance of power changes, nothing is going to change. तो मुझे लगता है कि जब तक हर हिंदुस्तान में हर इंसान को पता लग जाए कि अगर मैंने ये काम किया तो conviction is certain, होएगा ही, I will not get away and it will be swift. 3 महीने में ये कन्विक्शन हो जाएगा और होगा। When that becomes a reality in India, then the balance of power will change, and that is what we have to work towards. फिल्मों पे हम ब्लेम तब डाल सकते हैं जब हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी परफेक्ट काम कर रही है, जब हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी परफेक्ट काम कर रही है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, जब हमारी जुडिशरी परफेक्ट काम कर रही है, तीनों परफेक्ट काम कर रहे हैं, फिर भी यार ये अटैक्स बंद नहीं हो रहे हैं, देन यू कैन ब्लेम द फिल्म इंडस्ट्री। पहले these 3 are directly responsible for this. You're directly responsible for law and order and safety. You're directly responsible for justice. When that is not happening, film industry comes a little back in the row to be blamed, if you know what I'm saying. Having said that, again I'll go back to my first point. We have our own responsibility, which I feel we are not shouldering to the full, the film industry. In fact, I think धीरे धीरे हम लोग भी जैसे जैसे अवेयर होते जाएंगे तो हमारे मेरे हिसाब से ऐसे एड्स फिर कम होते जाएंगे, बिकॉज व्हेन वी लाफ एट एन एड लाइक दिस कि यार क्या हमको बेवकूफ बना रहा है, देन दोज एड फिल्म मेकर्स आल्सो विल रियलाइज कि यार दिस इज नॉट वर्किंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रोल हो रहा है कि जब हम फेयर एंड लवली ऐसे ऐड दिखते हैं तो बहुत से बार गोरा दिखना और उन्हीं लोगों को नौकरी मिलना, ये बहुत की लड़कियों में बहुत सा स्टिग्मा बैठ गया है कि आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। तो ये फिर से प्रोडक्ट बेस बन रहा है कि मैं अगर काली दिख रही हूँ या मेरी अच्छी सूरत नहीं है तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत सा प्रोडक्ट को एक सर्टन वुमेन की तरफ बना रहा है। मुझे लगता है हम आगे बढ़े। जी जी जी, बट आई एग्री विद एवरीथिंग यू सेड। थैंक यू। उर्वी वो कुछ पूछना था। मैं एक ऐसे फैमिली से, परिवार से हूं जहां जो औरतें हैं हमारे परिवार में वो बहुत ही स्ट्रांग औरतें हैं। तो जैसे मेरी अम्मी है, शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। मेरी चची जान, नारायण अंकल नोज आशा आंटी, वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। माई कजन सिस्टर नूजत, my sisters Farat and Nikhat, they were all very strong personalities, are very strong personalities. तो मैं उस माहौल में
पला और बड़ा हुआ, जहां मैंने आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन पर्सनालिटीज देखे हैं, तो मेरा अनुभव बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मेरा रिएक्शन अलग होता है और मर्दों से। मुझे जब रोना आता है मैं खुल के रोता हूं। आप लोगों ने देखा होगा सत्यम जयते में, मैं बिल्कुल अपने इमोशंस नहीं छुपाता हूं। चाहे मुझे अच्छा लग रहा है मैं हंसता हूं, मुझे खुशी हो रही है मैं खुशी दिखाता हूं, जब मुझे दुख हो रहा है मैं उदास हो जाता हूं, जब मुझे रोना आता है तो मैं रोता हूं। मेरे लिए वो क्वेश्चन नहीं आता कि अगर मैं रोऊंगा तो यार मैं फेमिनिन हो जाऊंगा या मैं औरत की तरह हो जाऊंगा, और अगर औरत की तरह हो भी जाऊंगा क्या बुरा है उसमें? औरतें बड़ी कमाल की होती हैं भाई। अच्छा होगा। So I don't have those issues. I completely believe in equality of genders, completely. These stand-up comedians and actors, in pursuance of freedom of speech, acted responsibly or irresponsibly? Okay. First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it, and I've seen 2-3 clips of it. And when the roast happened, I happened to be at a place where Karan and Arjun came to that place and told us कि हमने ये roast किया और ये हुआ. They told us all the dialogues that they had exchanged over there. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. I completely believe in freedom of speech, no issues. But we have to understand that we all have a certain responsibility. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. देखिए, violence सिर्फ physical नहीं होता कि मैं आपको 2 जूते मारूं. Violence verbal भी होता है, violence emotional भी होता है. जब आप किसी को insult करते हो, तो आप violence perpetuate कर रहे हो. आप एक बहुत ही वायलेंट चीज कर रहे हो और आप दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना वायलेंट हूं. तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं है कि मैं आपको वायलेंस दिखाऊं, चाहे वो फिजिकल हो, और उसको मैं आपको बताऊं कि कितना कमाल का है. आई डोंट लाइक इट. सो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु हैव लाइक्ड द शो, एंड आई बिलीव दैट ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड वी आर अलाउड टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. बट आई विल गिव यू माय ओपिनियन. मुझे लगा कि इट वाज अ वेरी वायलेंट शो, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मैंने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा. मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है, और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा. तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है. मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी उसने यार. आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज. आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ, तो मुझे मजा आएगा उसमें. किसी के रंग पे कमेंट करना, किसी के सेक्सुअलिटी पे कमेंट करना और उसको जोक बनाना और मैं आपके साथ हंसूं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही भाई इसमें. तो आई पर्सनली हैव अ प्रॉब्लम विद व्हाट दे हैव डन. देयरफॉर आई हैव नॉट सीन द शो, क्योंकि मुझे आई फील कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना. इससे पहले मैंने एक चीज कही थी कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन. मैं AIB की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करण की बात कर रहा हूं. मैं अर्जुन कपूर और जो भी एक्टर्स थे उस दिन, मुझे पता नहीं कौन कौन थे, मैं उनकी, हाँ सब भी जितने भी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं. मुझे लगता है, और मैं कौन होता हूं उनको कुछ कहने वाला, तो मैं अपने आप को ये चीज कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की अच्छाई को टटोलूं, और वायलेंट एक्ट करके मैं लोगों की अच्छाई को टटोल नहीं पाऊंगा. तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर. इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा. जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा. 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है. अब हम बात करते हैं उसके अगेंस्ट ऑनस्लॉट की. ये अभी सेपरेट चीज है. देखिए, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है कहीं पे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, हाँ, no, I'm saying FIR can be launched, but it has to be proved also, na, what they have done, what they have not done. Have they broken a law? Have they not broken a law? I'm not aware of the technicality. If they have broken a law, they should face the consequences like you and I. अगर कल को मैं कानून तोड़ूं तो I have to face the consequences. The law is for all of us. If they have not broken the law, then of course they should go scot-free. That the court will decide, that the
lawyers will decide, that the actual law will decide. When we read the law, we'll come to know what they have done, what they have not done. So I believe that the law should take its course. According to me, what I've also heard is there's a lot of lynching of them happening publicly, witch hunting. यार ये बकवास है, इन्होंने कैसे किया, इनको हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे. I don't believe in that either. मैं किसी को बैन करने में बिलीव नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि अगर मुझे आपकी कोई चीज पसंद नहीं आई है, आपने कुछ काम किया है जो मुझे पसंद नहीं आया है, मुझे बड़े फर्म और स्ट्रांग शब्दों में आपको ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आपने जो किया मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूं, और आपने ये पब्लिकली किया तो मैं और डिस्टर्ब हो रहा हूं, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आइंदा आप ऐसा ना करें प्लीज. एंड दैट इज वेयर आई शुड लिमिट माई इंटरफियरेंस इन दैट पर्सन्स, हाउ ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ. हु एम आई टू डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट योरसेल्फ? अगर मैं आपका कंडक्ट पसंद नहीं करता हूं तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप ऐसा ना करें. आई शुड अपील टू योर गुड सेंस नॉट टू डू दैट. And at the very least, an age lock has to be put in. If I'm using language of a certain kind, मैंने भी फिल्म बनाई है डेली बेली, उसमें कई अश्लील शब्द थे. हमने we applied for an adult certificate. I went out of my way in every ad of ours to tell people कि ये adult फिल्म है, इसमें अश्लील शब्द हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया है हमने. आप प्लीज ना आए अगर आपको ये नहीं देखना है. तो as a creative person, do I have the liberty? Yes, I do. I also have a responsibility. So I have to fulfill both. So freedom of speech, I completely respect freedom of speech. I have no issue with the matter. I also feel that each one of us has to also be responsible about how we are using that freedom of speech. And that is what I have to say on this topic. So many people who inspire me. I think one of them is my mother. She's been a big, huge influence on me. She's been a huge influence on me. And other than that, there are a lot of people who inspire me in different ways. You know, I may come across a person who I don't like, but I may like one thing about that person. तो वो एक अच्छाई भी मुझे असर करती है. सत्य में जते के दौरान मैं अनेक लोगों से, अनगिनत लोगों से मिला हूँ जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, जो आम इंसान हैं. उनकी जिंदगी से, उनकी कहानियों से मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला है. I've been so inspired by, you know, young boys and girls or men and women from different parts of the country who have really impacted me deeply with the courage they have shown, with the strength that they have shown in so many ways. So for me, all of these people are my idols. They all inspire me and help me to grow as a person. And one more question. What? Which has been your most satisfactory film? The one that you love the most? I think my most satisfactory work that I have done, it's not a film, it's Satyameva Jayate. That is my most, that's given me the most satisfaction. It's something that in the last, I mean, we are working on it for the last 5 years, for the team and me, for all of us. It has been so enriching, and we really feel, you know, thankful that we've had the opportunity to go on that journey, you know. थैंक यू. आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइम के हिसाब से चलें, तो आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे अगर मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म करूँ.